हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलिमे एजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद की गुलामी है संत आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। Now I would like to invite again Mr. Hafiz Rizwan for Naate Rasool Pak. दृष्टि पढ़ लीजिएगा. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है. हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है. कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती. ये हाज़री का शरफ़ बार बार आप से है. हुजूर में
सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। Now I would like to invite Muhammad Arslan Khan from Electrical Engineering Department to share his views with us. Assalamualaikum everyone. My name is Muhammad Arslan Khan and I am from Electrical Department of 2K21 batch. Dear President, respected teachers and all my dear ITL fellows, Assalamualaikum and good morning to you all. Today the topic that I have been given to express my feelings on is the Kashmir Solidarity Day. The Kashmir which is considered as the heart of natural heritage of Pakistan. The Kashmir which is also known as the heavenly valley of the beauty and charm. The Kashmir that was considered as the main streamline of the Pakistan by our great leader Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Now it's very easy to say that we are giving it our full support, moral support. But Kashmiris, what they have to do with that? The people who are facing each and every day of their life in an environment which is being like neither the less than a hell. Over hundreds of Kashmiris are being killed right now. More small children are being blinded by the inhumane use of the pellet guns by the Indian soldiers. And yet the most sorrowful thing is that the many women are being raped every day by the brutal Indian soldiers. Then why it is when over 8 million of Kashmiris are being imprisoned in their own homes? They cannot get the medical facilities. They cannot get their education. Why is it that the right of self-determination is stripped off from the people of Kashmir? So what's the solution then? What's the solution? In my point of view, the solution that Kashmir should consider as an independent state, and the land of Kashmir absolutely belongs to the Kashmiri people of Kashmir. Okay. The issue of Kashmir has got to a point that both the nuclear-equipped countries, who are also neighbors, Pakistan and India, are now talking about a face-to-face potential nuclear war. This will be a kind of war, this will be a kind of most deadliest race has ever experienced. And surely it will have the effects. No, I don't want you to think that I am exaggerating this situation. These are not my assumptions. These are the statements made by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, among the leaders of the world in United Nations. And why peace? Why peace is necessary between the both countries? That will be surely a mystery. I don't know why the people of Pakistan and India are not agreeing on the same that the opinion of the Kashmiris is very necessary for the freedom of their land. And I urge you to stand with the Kashmir. I urge you not to stand with the Kashmir, but I want you to stand with the people of Kashmir. Because we live in a country that builds on the notion of self-respect, individual liberty, and tolerance, and most importantly, democracy. In the end, I hope, being youngsters of nation, we will not only try to solve the issue of Kashmir by our moral support, but also practically. May God protect us and people of Kashmir from every evil eye. Thank you so much. We will not support Kashmir by our ethical values, but with the practical example. That was Mr. Arslan. Okay. Now I would like to invite Mirab Rehman from Biomedical Engineering Department to share his views among us. Mirab. In the name of Allah, the Beneficial, the Merciful.
I am Meera Brahim Khan from Biomedical Department. I feel motivated to speak about Kashmir Solidarity Day. Mr. President, the respectable audience, let me today, on the eve of Kashmir Day, draw said about Kashmir. Kashmir is the jugular vein of Pakistan, and no nation or country would tolerate its jugular vein under the sword of enemy. Mr. President, for more than 70 years, our fellow Muslims have been denied their rights to the sovereign. 70 years, Mr. President, in these 7 decades, they have made countless sacrifices, countless mothers have sacrificed their sons. Enough blood of their has been spilled until now. याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी. My honor, Kashmiris have done what they could, but the history bring to light the question, oh Pakistanis, what have you done for your family given in return? Let's recall today the message of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who while addressing Kashmiris laid the course of action to all of us. While addressing the Jammu and Kashmir Muslim Conference in October 1946, he remarkably said, "My message and earnest appeal to Muslim leadership in Kashmir is organize your people educationally, socially, politically and set your hand on constructive nation building program." बाहमी इत्तेफाक, इस्तेकाम और दुख दर्द में एक दूसरे के साथ खड़ा होना. और कश्मीर जन्नत का वो टुकड़ा जिस पर ज़मीन में क़यामत बरपा है, वो खूबसूरत वादी जहाँ आहो फ़गां गूंजता है, वो कश्मीर के जिसका दर्द बयान करने पर आऊँ तो मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि कश्मीर से रिश्ता है क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जो अज़्मे जवां रखते हैं साहिल है उन्हीं का, हारे हुए लोगों का किनारा नहीं होता. मगर जनाबे वाला आज एक बार सिर्फ हमारे जज्बे सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद है. हम सब एक मरतबा फेरियों में यकजहती कश्मीर मनाने के लिए जमा तो हुए हैं, मगर लफ्ज़ों की तोता मैना बनाएंगे वापस अपने घरों को लौट जाएंगे. हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कश्मीरी भाई किस मुसीबत में मुब्तला हैं. अफसोस, सद अफसोस कि हमारा ज़मीन इस कदर मुर्दा हो चुका है. इसी जंग हमें इस बात की कश्मीर की दास्तान मुख्तसरन बयान करना चाहती हूँ. आज वो कश्मीर है महकूम हो मजबूर हो फकीर, कल जिसे कहते थे ईरान सगीर, यारा कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी. तो आओ मेरे वतन के लोगों, भारत से ये कह दो, कश्मीर है हमारा, ये दुनिया को बता दो, ये जान है हमारी, इस पे मरना भी गवारा, चश्मे है ज़ेबा, इसका दिल आवेर. पाकिस्तान आप सबकी समातों का शुक्रिया. अब मैं काफी ख्यालात का इज़हार करने के लिए दावत देता हूँ अबीरा को, जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से. शहीदों की अज़ा हूँ मैं, मुजाहिद की हूँ शमशीर, मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर. मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का मेरा मौज़ू सुखन है मसले कश्मीर और आलमी बिरादरान का किरदार. पाकिस्तान को आज आज़ाद हुए 70 वर्ष से ज़्यादा का अरसा हुआ जाता है. आप अपने आप को पाकिस्तानी कहने में बड़ा ही फ़ख्र महसूस करते हैं. क्या आपने कभी ये सोचा है कि पाकिस्तानी होना सिर्फ काफ़ी नहीं, हमें उस कश्मीर की भी मदद करनी है जाकर. पाकिस्तानी कहलाना काफ़ी नहीं, उस कश्मीर को भी पूछना है जाकर वो किन हालात में है. हर साल यौम यकजहती कश्मीर डे के नाम पर मनाया जाता है. क्या कभी आपने सोचा है कि आप यहाँ बैठकर कश्मीर डे तो मना लेंगे, लेकिन जो वहाँ लोग हैं उनकी आपकी कौन सी मदद हुई आपकी तरफ से? आप कश्मीर डे मना लेंगे, वो कौन सी मदद हासिल कर रहे हैं? वो क्या चैन की नींद सो रहे हैं?
क्या उनको डर नहीं? नहीं, हम उनकी मदद तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ यहीं पे ये यकजहती का ही सेगमेंट कर सकते हैं। हमें आज इस चीज़ पे बहस करनी होगी कि हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं। आज कश्मीर अवाम उस मोहम्मद बिन कासिम जैसे लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं जो आए और उनको उस गुलामी से निकालें जिसमें वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक आह उठी और कहकों में दफन हो गई, एक आह उठी कहकों में दफन हो गई, मेरी आज की बात इस आह के नाम। जनाबे वाला, मेरी आज की ये गुफ्तगू थरथराती हवाओं में तड़पती इंसानियत की उन सिसकियों के नाम जो कश्मीर के दरीचों में गूंज रही है। मेरी ये बहस कश्मीर के उन रास्तों में खामोशी से कटने वाली उन गर्दनों के नाम जिनका कोई वली वारिस नहीं। मेरी आज की ये जिसारत मासूम बच्चों के नाम, उनकी बदबूज़दा लाशों के नाम। मेरी गुफ्तगू इस चेहरे के नाम जिसने कभी हंस के नहीं देखा। जनाबे वाला, मुस्कुराना भी सदका है और आप सोचें कि उन कश्मीरियों ने कभी हंस के नहीं देखा। हम दिन में कितनी दफ़ा मुस्कुरा देते हैं, कितनी खुशियाँ मिल जाती हैं। उन लोगों से पूछे जाकर जिनको कोई खुशी ही नसीब नहीं होती, आखिर हम किस तरह के पाकिस्तानी हैं, किस तरह का फ़ख्र है, किस तरह का गरूर है। फ़ख्र और गरूर किस चीज़ के लिए है जब हम किसी और की मदद ही ना कर सकें। जनाबे वाला, दौर हाजिर हमसे सवाल करता है, दौर हाजिर हमें कहता है कि ये कौन सी तागूती कुव्वतें हैं जो तुम्हारे ऊपर लागू हो गई हैं। तुम अपने कश्मीरी भाइयों को भूल चुके हो। आखिर तुम अपने फैसले की कुव्वत खुद क्यों नहीं रखते? आखिर तुम इनको गुलामी से निजात क्यों नहीं दिलाते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तो गले में डाल लो। आज ये कहती हूँ कि उनका तो गले में गुलामी का डाल लो, हमेशा कामयाब हो जाओगे। आखिर बात तो इरादों से ही बनती है ना, तो क्यों ना इरादे पर भी कुछ बात कर ली जाए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जनाबे वाला, जुल्मत शब का ये खौफ बढ़ता चला जा रहा है। मैंने देखा है कि हर तरफ शर्मिंदगी है, हर तरफ एक अजीब सी बेगानगी है, एक तमस्कर है, एक बातिल नजरिया है। क्या समझते हैं आप लोग? क्या मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। जैसा कि कहते हैं ना, खुर्शीद आग न बरसाए तो आम में मिठास नहीं बसती, शक ना हो तो सांस नहीं आती, आशियाँ न जले तो घर नहीं चलता। इसी तरह अगर हम इन कश्मीरियों की बात करें तो वो आज गुलामी में डूबे जा रहे हैं, गुलामी के ज़ेर हो गए हैं। हमें उनकी मदद करनी है। एक और चीज़ आपके सामने रखती चलूँ, प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। हमें अब समंदर से कोई बादल खींच लाना है। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है। हमें अब समंदर से बादल खींच लाना है। वक़्त पहरा नहीं करना इन तारीख गलियों में, वक़्त पहरा नहीं करना इन तारीख गलियों में। हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगी जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते, हमारे जंगी जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फात आम को अकाबों से लड़ना। जनाबे साहब, मेहमान गिरामी, काबिल इकराम उस्ताद इकराम और मेरे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजूद पर तबशाई करने का मौका दिया गया है उसका अनुमान है मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली और उसका हल। जनाबे साहब, कश्मीर क्या है? अगर हित्ता कश्मीर की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये हिस्सा इस वक्त फ़लस्तीन के बाद सबसे ज़्यादा मजलूम तरीन हिस्सा है। जनाब साहब, अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करें तो आज़ादी सबसे पहले आती है। अगर आज़ादी नहीं तो कुछ भी नहीं। मगर जनाब साहब, कश्मीर की वादी आज भी आज़ादी के नारों से गूंज रही है। कश्मीर के चश्मों का पानी आज भी शहीदों के लहू से सुर हो चुका है। जनाब साहब, कश्मीर आज भी अक़वाम आलम के लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। मेरी आंखें नम होने लगती हैं जब मैं अपनी माओ बहनों की चादरों को गाज़ियों के हाथों में देखता हूँ। अफसोस के आज कोई उमर नहीं, अफसोस के आज कोई खालिद बिन वलीद नहीं, अफसोस के आज कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं,
जो इन मजलूम कश्मीरियों को नमरूद की नस्ल से बचा सके। जनाब सर, आज हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं। इंसान ने हर मैदान में तरक्की कर दी है। जी हाँ, तरक्की कश्मीर में भी हुई है, मगर यहाँ जुल्म सितम के नए नए तरीके ईजाद हुए हैं। यहाँ अब सिर्फ शेलिंग नहीं की जाती, बल्कि बैलेट गन का इस्तेमाल करके मजलूम कश्मीरियों को अंधा कर दिया जाता है और सरेआम गोलियों की बिछाड़ करके मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया जाता है। पंजाए जुल्म जहालत ने बुरा हाल किया, बन के मकराज हमें बेपरो बेबाल किया। तोड़ उस दस्ते सितम कैश को यारा, तोड़ उस दस्ते सितम कैश को यारा, जिसने रूहे आज़ादी कश्मीर को पमाल किया। जनाबे साथ 70 साल दूसरों से मदद की उम्मीद लगाने के बाद, लाखों अफराद शहीद करवाने के बाद, जुल्म सितम की चक्की पीसने के बाद, अब हमें इस बात को समझना होगा कि अब हमारी मदद को किसी ने नहीं आना। अक़वाम मुत्तहिदा पर मज़ीद नज़र रखने के बजाय हमें खुद मुनाज़िम होना पड़ेगा। हमें इस बात को समझना होगा कि कौमें अपनी आज़ादी, इज़्ज़त और वक़ार की जगह खुद खड़ा करती है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम तीन चार इशार से करूँगा। उठ शेर मुजाहिद होश में आ, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तमीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर। करतों की तरक्की दुनिया में, करतों की तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम के दम तो बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है, या इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक़ शहादत पैदा कर। और दिल से ये कह कर घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं, जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। ये जाल कफस से याद होंगे, ये जाल कफस से याद होंगे, अब गलने सड़ने वाले हैं। हिम्मत नहीं तूफानों में, हिम्मत नहीं तूफानों में, जज्बों को हमारे चीर सके, कि जितना हमसे उलझेंगे हम और उभरने वाले हैं, हम और उभरने वाले हैं। I invite Mahnoor for sharing his views among us. Mahnoor. Electrical and Rating Department. करदस्त हवाएं हिंद दिलगीर भरा, करदस्त हवाएं हिंद दिलगीर भरा, ऐ वक्त रसा का बागे कश्मीर मरा। गश्तम ज़ी हरारते गरीबी बेताब, गश्तम ज़ी हरारते गरीबी बेताब, आज सुबह वतन विधि तबशीर मरा। Good afternoon everyone. According to Quaid-e-Azam, king in the world, Pakistan stands for Kashmir as he told Mountbatten, Pakistan is incomplete without Kashmir. Quaid called Kashmir jugular vein of Pakistan. Every year on 5th of February, Pakistan observes Kashmir Solidarity Day and is celebrated as a national holiday. This day is a reckoning and awakening and a reminder that every citizen of Pakistan stands united with each Kashmiri. This day is a message to the entire world that Indian occupied Kashmir is our part and heart of the country. Kashmir Solidarity Day was observed for the first time in 1990. It was proposed by Jamaat-e-Islami and was supported by the government of Pakistan. The day is celebrated by every Pakistani and Kashmiri who has been fighting for freedom for more than 70 years. This day honors and commemorates every Kashmiri who lost their life in the fight for freedom. In the quest for their identity and rights, many Kashmiris have lost their lives and many of their loved ones. This isn't a single home in Kashmir which hasn't lost a member to the struggle. Pakistan supports Kashmir. Pakistan supports Kashmir in its primary right to self-determination. The recent government of Pakistan has raised the conflict of Kashmir and the India's stubbornness, ever-increasing legacy of tolerance in United Nations and other international forums. Our Prime Minister said in his recent address in UN that no one is safe until everyone is safe. Since day one, the government of Pakistan is clear in its stance about Kashmir that we are standing behind them. The leadership of Indian occupied Kashmir told the world we are not alone. Pakistan is there to watch our back. Pakistan has fought India 2 wars over Kashmir. Every Pakistani is ready to fight India to save their brothers in Kashmir. Time and again,
Pakistan has proven its loyalty and brotherhood with the Kashmir by raising their voice against the opposition they are facing. Kashmir will become the map of Pakistan and it will always be inseparable from us. The heritage of violence and tyranny which is being carried out by India in Kashmir has to stop, and Pakistan will not rest in peace until every home in Kashmir is safe, until every woman in Kashmir is secure, and until every Kashmiri man can offer prayer freely in their mosques. The genocide of Kashmiris and the bloodshed of thousands of innocent Kashmiris will become the nail in the coffin of cruel Indian government. कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। सुनते गानों को कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हसनैन शबीर का सलाम जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आज की अपनी तकरीर जिसका मौजू है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसका आगाज ज़ाते बाबरकत के नाम से करता हूँ जिसने इस बंजर ज़मीन पर वादी कश्मीर जैसी खूबसूरत वादी बनाई। ये वो वादी के जिसकी मिसाल न मशरक में मिले न मगरब में मिले, ये वो वादी के जिसकी मिसाल न मगरब में न मशरक में, जिस पर खुद कुदरत नाज़ा है। लेकिन कुदरत के असूल बड़े अजीब होते हैं। जितनी बड़ी कामयाबी होती है इम्तिहान उतना बड़ा होता है। और जितनी खूबसूरत सी वादी थी, अजान हो रही है, मुझे इंतजार करना चाहिए। मौजू की तरफ वापस आता हूँ। मैं बात कर रहा था कि जितनी बड़ी कामयाबी होती है इम्तिहान भी उतना सख्त होता है। इसी तरह जितनी खूबसूरत ये वादी है उसमें जुल्म और बर्बरियत का तूफान भी उतना ज्यादा है। हमने कश्मीर को अपनी शारक करार दिया, हमने इसको बचाने के लिए कोशिशें की। आओ मैं आपको बताता हूँ हमने कोशिशें क्या की। हमने किया तो फकत एहतजाज किया, हमने निकाली तो सिर्फ रैलियां निकाली, हमने मुनक्कद करवाए तो सिर्फ मुशायरे मुनक्कद करवाए। हमें कश्मीर से सिर्फ इतना ही तल्लुक है, हमने सिर्फ बातों तक कश्मीर को सपोर्ट किया। हमने जब देखा कि इससे कश्मीर आजाद नहीं होता, हमें पता चल चुका था कि बता दो कोई एहतजाज करने वालों से कि अगर एहतजाज से गुलिस्तान तैयार होता तो आज फलस्तीन भी आजाद होता, कश्मीर भी खुद मुख्तार होता। हमें पता चल गया कि एहतजाज से कश्मीर आजाद नहीं होगा। हम चले गए यूएनओ, हमने दरवाजे खटखटाए अक़वाम मुत्तहिदा के, हमें उधर से इंसाफ नहीं मिला। हमने दस्तक दी जुनेवा के दफ्तरों पर, हमें उधर से इंसाफ नहीं मिला। हम एक बार फिर कुछ भूल गए थे। हम भूल गए थे कि ये जिनके अदारे हैं वो वीटो पावर्स हैं, ये अदारे हैं ताकतवर के लिए, ये गरीब को दबाने के लिए हैं। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये अदारे उन ममालिक के हैं जहाँ सूरज तलू होता है, वो कोई फैसला कर देते हैं, किसी मुल्क की तकदीर लिख देते हैं और शाम होने से पहले उनके फैसले पर अमल दरामद हो जाता है। हम जैसे कमजोर ममालिक के लिए सिर्फ उधर सुनने के लिए इजाजत होती है। हम उधर जाकर बोल नहीं सकते, हम उधर जाकर इंतजार कर सकते हैं अपना फैसला सुनाते। और जिन्होंने वो अदारे कायम किए वो अपने फैसले सुनाने आते हैं। एक बात और साबित होगी, हमें यूएनओ से इंसाफ नहीं मिलेगा। यूएनओ सिर्फ उन ताकतवरों के लिए है जो अपनी बात मनवाना जानते हैं। कभी आपने सुना किसी ने अमेरिका पर हमला करने की जुर्रत की? कभी आपने सुना किसी ने चीन का हक हसब करने की जुर्रत की? नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जहां सर उतरने का खदशा हो वहां पांव बड़े एहतियात से रखने पड़ते हैं। अब हमें जीना है तो अपने कुव्वत बातों पर। हमें कश्मीर देना नहीं, हमें कश्मीर छीनना पड़ेगा। उसका हाल अपने आप को कमजोर न समझो। दुनिया में तकरीबन 203 ममालिक हैं। 203 ममालिक में से एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान के छोटे से शहर मुल्तान में, छोटे से शहर मुल्तान की छोटी सी यूनिवर्सिटी, एनएफसी के छोटे से डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, छोटे से डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट में बैठा कोई तालिब इल्म ये ना सोचे मैं छोटा हूँ, मैं इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकता। डियर फ्रेंड्स, यू आर रॉन्ग। मैं आपको बताता चलूं कि राजियों ने जब दूसरी जंग अज़ीम में जब उन्होंने मारा था तो उन्होंने अपने दुश्मन को सबसे ज्यादा केमिकल बार फिर से नुकसान पहुंचाया था। आज सारे नोबेल प्राइज यहूदियों के पास है, आज सारे इनाम यहूदियों और ईसाइयों के पास है। हमारे पास
पास कुछ नहीं है, हमें अपने ताकत बाजू पर जीना होगा, वरना हम कश्मीर को लेने से तो क्या कहीं अपना इलाका छीन दें। अगर हमने कश्मीर को आजाद करवाने की कोशिश ना की तो बरसों बाद जब मौलत लिखने बैठेगा तो वो कुछ भी लिखेगा। जब कश्मीर के बच्चे रो रहे थे तब उम्मत मुसलमान के हुक्मरान सो रहे थे। जब जरूरत थी किसी महमूद गजनबी की तलवार की, जब जरूरत थी किसी महमूद गजनबी की तलवार की, जब जरूरत थी किसी कासिम की यलगार की, जब जरूरत थी किसी अयूबी की सरकार की, जब किसी तारक के हाथों कश्तियां खाक होनी थी, जब खंजरों सलीम के हाथों जुल्मतें खाक होनी थी, जब खूने मुजाहिदे मुस्लिम पीकर कमीने कुफर पाक होनी थी, तब झगड़े थे मुसलमानों में तख्तो ताज के लिए, तब वाक़े हो रहे थे अरबो अजम में राज के लिए, तब दुश्मन मुंतज़र था मुसलमानों के इख़राज के लिए। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन इस तरह लिखे, दुश्मन लिखे कि एक ऐसी कौम भी आई थी जिन्होंने 70 साल अक़वाम मुत्तहिदा में धक्के खाए, जिन्होंने इंसाफ की भीख मांगी लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, फिर उन्होंने अपने कुफर के बाजू पर ऐसा इंसाफ लिया दुनिया को उनकी बात माननी पड़ी।